Yes, sir. Okay, fine. Okay, so we can start whenever the students will come, they can join us. Okay, so in the last lecture, we have talked about the Feastal structure, basically block cipher structure. In the last lecture session, we have discussed about. Now we are going to uh, the different area of network security of or the encryption techniques, that is nothing but public key encryption. Okay, so before moving towards public key crypto system, as you can see, the title is authentication and key establishment management. So basically we have discussed about the complete process of crypto system, where key is the important thing, or key plays the important role. So before starting the key distribution, key management and authentication, today we will see that why the public key cryptography is required. Okay, so point by point, and whenever there will be a requirement, I will write on the digital board also. So basically, key establishment are badly needed when public key cryptography setup is used. Okay, so these are both are the we can say the complementary thing, that public key cryptography system and key establishment and management algorithm. Now, as it has been discussed that private key or cryptography symmetric keys used a single secret key. We have seen in lots of the algorithms related to network security that is having the single key, because that was the symmetric cryptography setup. And due to this, there is one issue related symmetric cryptography system, that is, once a single key will get compromised, then the complete secret data will be compromised. So it is one issue, definitely. So for overcoming all the things, we required a public key cryptography technique. And here at the end, this one, you can see that RSA is the scheme. R is nothing but Rivest, and Eddie Shamir and Eldman, all are the scientists, mathematicians. And this RSA scheme that we will discuss in later, that used for the distribution purpose of public key. Okay, so before moving to the before moving towards the next slide, I'm simply telling to you the basic things of public key cryptography system. Okay, before starting this, I'm simply writing two things, that is symmetric. Whatever I'm writing, it is visible to all of you? Anyone? No, sir. It is not visible? No, sir. Okay, just wait. Now I think it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so symmetric key system, we can write like symmetric key system. Okay, and I'm doing here like asymmetric. Asymmetric key system, basically crypto system I'm talking about. Okay, so in symmetric we have seen lots of techniques like Caesar cipher, okay, Caesar, Playfair, Hill cipher, and in block cipher case,
we have talked about the feistel structure, and DES. We also talked about the DES, data encryption standard scheme. In block cipher, although I have discussed about this, that in block cipher case we convert the complete block into a ciphertext block. Then in stream cipher case we convert the bit plain text bit to the ciphertext bit by bit. So this is the thing. Now in symmetric key system, why we are calling it, isko ek aur cheez we can also use another word for this, and that is nothing but private key system. Although you will not have this kind of the word in the book dictionary, but we can use this thing that it is nothing but private key system or crypto system, because this system, it is having a single key for encryption as well as decryption purpose. For both purposes we use a single key. Now in asymmetric key system, if we want to write here, so here we can use one term, that is public key cryptography. So in public key cryptography, the logic is, here is the pair of the key. Okay, so I'm writing something like this. Let's say PUA, and the corresponding element of this pair related to PUA is nothing but the PRA. It means we are having a pair, and this is called the public key of source A, and this is private key of source A. And these will be generated like this, that if we are using for encryption purpose, suppose for encryption purpose at the sending end, if we are using public key, then for the same data recovery we have to use PRA for decryption purpose. Another case is also possible, that if we are using encryption, if we are using a PRA for encryption purpose, then for doing the decryption of the same data we must have to use public key of the same source for decryption. That's why I'm calling the pairwise key generation. So this is in public key cryptography system, always there is a pair, and the pair will be like corresponding keys, public key and the private key. और ये कुछ इस तरीके से ही जनरेट की जाती है कि अगर आपने एक साइड पर पब्लिक की लिया है तो दूसरे साइड पर, मींस रिसीविंग एंड पर, प्राइवेट की यूज करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है. So this is the basic concept of public key system. Now I am moving towards the PPT again. This PPT is visible? Yes, sir. Okay, fine. So it was the basic concept of public key system. Now
whatever I have told you, it is written in it is written here, that is public key or asymmetric key cryptography is the technique where pair of keys is used, and pair of keys like one is public key and another is the private key, and one is used for encryption, then other is used for decryption. Now public key cryptography developed for resolving two major issues. तो देखो issues क्या है, why we talked about the public key, because हमारे पास already एक private key system था, cryptography system, जो कि हमने देखा भी, जिसके थ्रू DES एंड आपके जितने भी साइफर्स अभी हमने डिस्कस किए वो सब कुछ पढ़े थे. फाइन. Even in Feastel structure, I'm just moving. Okay, so don't get confused here that you are using K1, K2, Kn. So these are not the separate keys. No, these are the sub keys of the master key say K. तो आप उससे सब कीज जनरेट करते हैं each राउंड के लिए. Now, अगर मैं इसके डिक्रिप्शन पर जाता हूं, then you can easily see that the K16 is using for the first round of the decryption process. तो ये की चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ देख लीजिए, Kn is nothing but the 16th key for the 16th round. Okay, so just due to reversible process, तो decryption process का first round will similar like the 16th round of the encryption process in Feastel structure. तो वो यहाँ आप easily देख सकते हो, this one 16th. Okay, so that is why it is not the example of the public key cryptography. No, although you are using different keys but for the different rounds, but जो भी आप encryption के लिए यूज कर रहे हैं rounds में keys, वही आप decryption पर यूज कर रहे हैं. That is why it is not the public key system. Now, अब इतना सारा कुछ था, उसके बाद जरूरत क्यों पड़ा? तो देखो, तो there are two things, major thing. One is the key distribution and second is the authentication. Okay, तो मैं वापस से एक पुरानी स्लाइड पर जाता हूं. की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप, now you can easily see this figure 2.3 conventional crypto system, and this is the example of the symmetric key system, क्योंकि आप सेम की को यहाँ पर यूज कर रहे हैं. फाइन, सेम की फॉर encryption purpose, सेम की फॉर decryption purpose. Okay, now there is the issue related this secure channel. Means आपने की का यूज करके डेटा तो सिक्योर कर लिया एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा करके, बट सपोज करिए कि आपको की डिक्रिप्शन रिसीविंग साइड पर भी सेंड करना है पहले, तभी डिक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा. If your channel is not secure by which you are transmitting your key, then there is no meaning of having any kind of the complex encryption or decryption algorithm. अगर आपका की कॉम्प्रोमाइज हो गया तब फिर प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, तो एक रीजन तो ये है की डिस्ट्रीब्यूशन का. अच्छा, की डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल तो मैंने ये बताया सिक्योर चैनल के लिए. सेकंड एग्जांपल आप इससे भी समझ सकते हैं, फीस्टल स्ट्रक्चर. जितने राउंड्स होते हैं फीस्टल स्ट्रक्चर में, एज आई टोल्ड यू एंड वी हैव डिस्कस्ड, इवन जितने राउंड्स हैं उतने नंबर ऑफ कीज जनरेट करना, सब कीज जनरेट करना पड़ती हैं, और वही सब कीज डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए भी चाहिए. अब आप सोचो 16 राउंड है तो 16 कीज हो गई. अब इन की को आपको रिसीविंग साइड ट्रांसमिट करना पड़ेगा पहले, तभी ये डिक्रिप्शन प्रोसेस पॉसिबल है. तो आपको ये कीज किसी ना किसी चैनल के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू यू हैव टू सेंड दोस कीज आल्सो. तो अगेन देयर इज अ इशू रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की. ओके, तो एक तो पॉइंट हुआ की डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज द इशू फॉर रिजॉल्विंग दिस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी came into the picture. And second is the authentication. Now anyone can tell me about the authentication? इसका जनरल मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of authentication? सर बेसिकली ये है कि अगर किसी बंदे को मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल के पास ही जा रहा है, ना कि किसी मैन इन द मिडल बंदे को जा रहा है. ठीक है, ठीक है. ओके, so you are talking about
the one side authentication, that is authentication at the receiving side. ठीक है, रिसीविंग अब बोथ ओके, साइड, दोनों साइड ही कर सकते हैं वो, मतलब हाँ ठीक है, दोनों साइड भी कर सकते हैं। दूसरे साइड हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि एक बार कम्युनिकेशन आपका हो चुका है, अब उसके बाद में सपोज सेंडर बोलता है या रिसीवर बोलता है कि नहीं ये वो मैसेज नहीं है, तो कोई समवन कैन क्लेम आल्सो। अब अगर क्लेम करता है देन हाउ यू कैन चेक और वेरीफाई, ठीक है। सो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ दीज थिंग्स दैट इज यू कैन कंसीडर इट इज ऑथेंटिकेशन। तो अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फॉर इम्प्रूविंग आवर सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम, तो ये इसका जरूरत पड़ता है ऑथेंटिकेशन का। सिमेट्रिक की सिस्टम में हम ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोविजन बहुत कम है, कर तो सकते हो बट बहुत रेयर चांस है, ठीक है। तो की डिस्ट्रीब्यूशन और ऑथेंटिकेशन, इन दो इश्यूज की वजह से हमको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को डेवलप करना पड़ा, और साइंटिस्ट डेवलप्ड दैट asymmetric key system. And for key distribution purpose, best algorithm, known algorithm, that is RSA, और भी होती है but RSA is the main, very first, and we will also discuss this RSA algorithm, how it works. And similarly for the authentication purpose we also use RSA. RSA को आप authentication के लिए भी use कर सकते हैं, multitasking algorithm है ये. And another algorithms like hash functions, so we will see how hash functions will work and how it supports to the authentication process, and digital signature techniques also. So these are the basic requirement of public key system, public key cryptography. Basics of public key cryptography I have also told you. And before moving to further, I would like to ask you that if anyone is having any issue now related to public key cryptography, तो आप पूछ सकते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। सर एक डाउट था कि सपोज मैं ऑथेंटिकेशन, मतलब लाइक जैसे आपने मेथड्स बताया, डिजिटल सिग्नेचर सेंड कर रहा हूँ किसी को, हाँ ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए कि वो बंदा जेन्युइन है, अगर किसी ने मैन इन द मिडल अटैक कर रखा है बीच में, हाँ ठीक है, तो उसी के पास भी तो वो डिजिटल सिग्नेचर जाएगा। हाँ तो बिल्कुल जाएगा ना, तो उसके तरीके है ना। देखो आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दिस इज काइंड ऑफ द ऑथेंटिकेशन, फाइन, दिस वन, ठीक। कैसे करते हैं क्या, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सवाल आपका ठीक है, बट यहाँ पब्लिक की से क्या होता है, मैंने आपको इसीलिए बोला दोबारा पूछने के लिए, क्योंकि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना कि ये जो पब्लिक की आप यहाँ देख रहे हो, पब्लिक प्राइवेट की ऑफ ए, तो अगर इंक्रिप्शन प्राइवेट की ऑफ ए से हुआ है तो डिक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की ऑफ ए से ही होगा, और पब्लिक की किसी और के पब्लिक की से यूज करने से भी नहीं होगा। और एक और थिंग, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, कि कोई भी यूजर, सपोज इस सिस्टम में ए बी सी डी एच और आई, सपोज इतने यूजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 यूजर्स हैं सपोज, ठीक है। अब each user will have the public keys of others, ये तो ठीक है, but each user will have only the private key of himself or herself. तो आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आप जो पूछ रहे हो इट्स ओके, क्योंकि अभी यहाँ पर मैसेज इंक्रिप्शन भी आता है। देखो इसकी हम धीरे धीरे करके बढ़ने वाले थे वैसे, बट मैं बता देता हूँ कि हाउ वी कैन अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी इन मैसेज इंक्रिप्शन। ये मैसेज इंक्रिप्शन का ऑथेंटिकेशन एंड सिग्नेचर टेक्निक है, ठीक है। अब उसी तरीके से मैक आता है, मैक में कैसे प्रोसेस होता है, देन हैश फंक्शन आता है, एंड आफ्टर दैट डिजिटल सिग्नेचर आता है। तो जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये देखो, दिस इज काइंड ऑफ द मैसेज ऑथेंटिकेशन वाया डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक। ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे ना आप? यस सर। तो यहाँ अब मैसेज कुछ इस तरीके से सेंड किया जाता है, दिस इज अपेंडेड वर्जन, we will see what is the meaning of C, capital C is here, it is Mac or something else, then key you are using। अब देखो यहाँ पर आप सेम की यूज कर रहे हो, फाइन,
और दिस इज चेकसम। सो मैसेज प्लस चेकसम मिलके एक अलग मैसेज डिजाइन करेगा। तो अगर यहाँ पर अटैक होता है तो कैसे रिसीवर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। हर एक ब्लॉक, हर एक स्टेप अलग अलग है। ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन के लिए है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अगर अब देखो इस सिस्टम से आप कहाँ गया, चलो मैं किसी और के लिए बता देता हूँ, वो बहुत सारे डायग्राम है इसमें। देखो ये ऑथेंटिकेशन के लिए है, ये ऑथेंटिकेशन एंड सिग्नेचर के लिए है, ठीक है। देन अगेन दिस इज ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर। सो देयर आर थ्री थिंग्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग क्या है हम वो देखेंगे, ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या है वो देखेंगे, देन सिग्नेचर का मीनिंग क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अलग अलग टेक्निक्स के लिए। बट बिफोर दीज टेक्निक्स, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक की सिस्टम। अब जैसे यहाँ इंक्रिप्शन का डायग्राम दिख रहा है आपको। यस सर। अब इसमें यहाँ अभी मैं ऑथेंटिकेशन की बात नहीं किया, किसी चीज की बात डिस्कस नहीं किया। सो दिस इज सिंपल एन्क्रिप्शन प्रोसेस ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक। आपको आपके सवाल का आंसर मिला नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि जो आप पूछना चाह रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू दी नेक्स्ट टॉपिक टू दिस, हाउ यू कैन यूज पब्लिक की सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो गुरकीरत, ठीक है। यस सर, कोई बात। हाँ, तो वो आपको डायग्राम बता दिए, देन वन बाय वन वी कैन डिस्कस, यू विल गेट इट। वो एग्जैक्टली वही मैसेज नहीं मिलता, उसके साथ जो अपेंड होता है आपका, वो जो चेकसम होता है वो चेंज हो जाता है। और जैसे ही चेकसम चेंज हो जाता है तो हम उसको मैच करा के देखते हैं। चेकसम बिट कह रहे हो जैसे उसमें होता है। ये देखो, ये रहा सपोज दिस वन, देखो बिट नहीं होती, वही तो कह रहा हूँ। अब ये एक एक करके ही तो पढ़ना पड़ेगा यार, कुछ ठीक है सर, बिट, ठीक है। कोई बात नहीं। बट आपके सवाल का जवाब ये है कि देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। सर, यस सर। अब ये जिस चीज का कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना, ये कंपेरेबल तभी होगा, इक्वल तभी आएंगे जब इसमें मैन इन द मिडिल अटैक नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो फिर ये इक्वल नहीं आता, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो डेस्टिनेशन डिनाई कर देगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अटैक हैज बीन लॉन्च्ड, तो अब इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं मैसेज को। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर। So we move to the public key cryptography basics. Okay, now this is the encryption process, very simple, very easy. So I'm simply putting the class board here. Okay, so as I told you, our consideration is कि इस सिस्टम में 6 users हैं, suppose 6 users A, B, C, D, H and I. Sender A wants to transmit a message, any message. Now there is encryption algorithm. आपने कोई suppose RSA ही use कर लिया। अब आपने encryption जो किया तो की, अब देखो जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी के पास एक पब्लिक की रिंग होगा डेफिनेटली। तो ए के पास भी पब्लिक की रिंग है, अगर ए ट्रांसमीटर है, सेंडर है, तो पब्लिक की रिंग में पब्लिक कीज होती हैं, पब्लिक कीज ऑफ ईच यूजर। फॉर एग्जांपल PU। सर आपका बोर्ड विजिबल नहीं है। अच्छा, विजिबल नहीं है क्या? अरे यार, ओके ओके, वेट, अभी विजिबल है? नहीं सर। अभी भी नहीं हुआ? अच्छा, एक सेकेंड। अभी दिखा क्या बोर्ड? क्या
सर वो ग्लास बोर्ड दिखा था, मतलब उस पे कुछ रिटर्न नहीं था। उस पर कुछ रिटर्न नहीं था क्या? अभी अभी देखो, अभी दिखा कुछ स्क्रीन? नहीं सर, सर वो पर्पल साइड से आप ड्रैग कर दो ना एक बार राइट साइड पे। ऐसे हाँ अब ठीक है सर, हाँ ये पूरा दिख कर रहा दो है? फिर आप। दिख रहा है? नहीं हाँ बट पीपीटी नहीं दिख रही क्या अभी? नहीं सर, उसमें फिर एक चीज दिख रही है मतलब। अच्छा ठीक है, वेट 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 वेट, ये बड़ा चक्कर है। अब शायद आपको ये विजिबल होगा पीपीटी। सर पीपीटी विजिबल है, बोर्ड नहीं है। ठीक है, बोर्ड नहीं होगा। अब बोर्ड भी विजिबल होगा, अभी नहीं होगा। वेट वेट, अब बोर्ड भी विजिबल है हाँ जी सर। और पीपीटी भी। ठीक है, okay. So what I was telling to you that we are having 6 users, ठीक है, और सभी यूजर्स के पास उनका एक दूसरे का पब्लिक कीज होगा। तो इसमें क्या होगा, पीयू ए भी है, पीयू बी भी होगा, पीयू डी, पीयू एच एंड पीयू आई, एंड द सेम थिंग will have the other users also. डी के पास भी पब्लिक की होगी अपनी और खुद दूसरे की भी, ठीक है, बट प्राइवेट की ए के पास सिर्फ एक ही होगा, दिस वन। सो दिस इज द प्राइवेट की, ठीक है। तो सेंडर ए ने कोई मैसेज प्लेन टेक्स्ट सेंड करना है, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज किया, और सपोज जिस भी रिसीवर को सेंड करना है, सपोज बी इज द रिसीवर साइड, तो A, sender A, because A will must have A will have the public key of B definitely, तो वो B के पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट कर देगा और ट्रांसमिट करेगा। एंड वन थिंग, ये इस पेयर में ही जनरेट होते हैं, ये बनाई इस तरीके से जाते हैं कि एक साइड अगर पब्लिक की यूज हो रहा है तो दूसरी साइड प्राइवेट की यूज होगा, तभी रिकवरी पॉसिबल है। तो अगर पब्लिक की बी के से कर दिया, अब ये कंफर्म हो गया कि ये जब भी इसको डिक्रिप्शन करना है मस्ट हैव प्राइवेट की ऑफ बी। अब ये कंफर्म हो गया है क्योंकि पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब देखो, सपोज करिए कि सेंटर में किसी ने इस मैसेज को, साइफर टेक्स्ट को डिटेक्ट कर भी लिया, बट ही और शी विल बी अनेबल टू डिक्रिप्ट बिकॉज प्राइवेट की तो सिर्फ बी के पास ही होगा, बी का, ठीक है, जो कि और किसी के पास नहीं है। तो अगर ये मैसेज डिकोड हो सकता है, so there is only one condition, that private key will be there or private key of B will be there, and private key of B will be only B will have, okay, capital B source is destination is having. So this is the simple encryption process of public key system. Now I'm erasing the all thing, I'm closing this one. Now this is called the authentication. अब देखो, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो, इनको जब भी whenever you will apply the encryption in public key system, simple encryption, then public key at the transmitting side will be used and private key at the receiving side will be used. Whenever we talk about the authentication in public key cryptography system, वो चाहे हैश फंक्शन हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, मैक हो, whatever, private key of A will be there at the transmitting end and public key will be used at the receiving end. तो reverse process अगर आप कर देते हो encryption से, तो फिर वो authentication की तरह आप use कर सकते हैं। authentication कैसे?
सपोज सेंडर ए ने एक मैसेज ट्रांसमिट किया, प्लेन टेक्स्ट मैसेज विद द हेल्प ऑफ एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम RSA, एंड ही इज यूजिंग अ प्राइवेट की ऑफ ए, जो कि पॉसिबल केस है। क्यों पॉसिबल केस है? क्योंकि ए के पास ए का प्राइवेट की तो होगा। क्या ए के पास प्राइवेट की ऑफ बी हो सकती थी? नहीं सर। नहीं हो सकता था। फाइन, तो ये पॉसिबल केस है, तो प्राइवेट की ऑफ ए यूज किया गया और एन्क्रिप्शन किया। अब देखो, जैसे ही ये प्राइवेट की ऑफ ए यूज किया तो इसने ये कंफर्म कर दिया दैट रिसीविंग साइड पर पब्लिक की से ही यूज होगा। ठीक है, पब्लिक की से। नाउ अब आप रिसीविंग साइड पर आ गए। अब डिक्रिप्शन इसके पब्लिक की से ही होगा। सपोज करो कि इस साइफर टेक्स्ट को रिसीवर बी ने यूज नहीं किया, किसी और यूजर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। लेट्स से यूजर सी ने डिटेक्ट कर लिया, तो यूजर सी के पास भी पब्लिक की होगा ए का। ठीक है, यूजर डी के पास भी पब्लिक की होगा ए का, एच के पास भी, आई के पास भी। तो अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे हुआ बताओ? उसके पास प्राइवेट की नहीं होगी ना उस केस में फिर। प्राइवेट की तो किसी के पास नहीं होगी एक दूसरे की। बी के पास भी प्राइवेट की ऑफ ए नहीं होगा, पब्लिक की ही होगा। सो दिस इज वन साइडेड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कैसे? सपोज करो आपने ब्रॉडकास्टिंग टर्म सुना है, सभी ने सुना होगा। ब्रॉडकास्टिंग मीन सिंगल ट्रांसमीटर मल्टीपल रिसीवर। ओके, सपोज करिए कि एक कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है जो कि 100 एंटेना से रिसीव किया जा रहा है। अब अगर वो जो मेन सिग्नल है ट्रांसमीटर साइड से जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, अगर वो सिग्नल गड़बड़ हो तो सभी 100 रिसीवर्स को वो गलत मैसेज मिलेगा। तो दिस इज द ऑथेंटिकेशन कि यहां पर रिसीविंग साइड पर कोई भी यूजर, एनी यूजर कैन, एनी यूजर ऑफ द सिस्टम, डेफिनेटली जो सिस्टम में इंक्लूडेड है, नॉट द इंट्रूडर, तो कोई भी यूजर उस साइफर टेक्स्ट को डिटेक्ट करके तभी वेरीफाई कर सकता है जबकि वो ए का पब्लिक की यूज करे। ये तो कंफर्म है। जैसे ही ए का किसी और के पब्लिक की से ये साइफर टेक्स्ट वापस प्लेन टेक्स्ट नहीं बनेगा, वो तभी बनेगा जब ए का पब्लिक की यूज किया गया हो। ठीक है, तो जैसे ही आप ये यूज करेंगे, एट द एंड कोई भी इनमें से सी, डी, ए, एच और आई और बी, ये कोई भी ये क्लेम कर सकता है कि नहीं, ये जो मैसेज आ रहा है दैट मैसेज इज फ्रॉम सोर्स ए। ठीक है, सो दिस इज वन साइडेड ऑथेंटिकेशन कि आपने ये प्रूव कर दिया। प्रूफ भी यू कैन ऑल्सो गिव द प्रूफ टू द सेंडर ऑल्सो कि भाई ये आप ही ने मैसेज ट्रांसमिट किया है, अदरवाइज ये रिकवरी नहीं होता। सो दिस इज द कॉल्ड ऑथेंटिकेशन बट वन साइडेड। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, सो हाँ, कुछ कोई पूछना चाह रहा था शायद। अच्छा, अगर नहीं पूछना चाह रहे हो then it is okay. So this is the basic thing related to authentication. In the next lecture we will also discuss the other technique, other means methods or the basic public key system. But before this ये दो डायग्राम जरूर दिमाग में रखना अपने हमेशा पब्लिक की के लिए। एनक्रिप्शन जब करते हैं तब पब्लिक की सेंडर साइड पर यूज करते हैं, प्राइवेट की रिसीविंग साइड पर। When you will do authentication, तो प्राइवेट की ट्रांसमिटिंग साइड पर, पब्लिक की रिसीविंग साइड पर। So this is the nothing but authentication process, same रहता है। So it is okay for my side. I think time is 3:25. It's okay. टाइम भी हो गया है, तो मैं अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।
Okay, okay, fine. So I'm just ending this. Time हो गया क्या? Okay, thank you.